السلام علیکم ویورز جیسے ہزارہ یونیورسٹی میں جیسی نیڈ بیس اسکالرشپ اناؤنس ہوئی ہے، اب اس اسکالرشپ کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے؟ اس سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے، گوگل پہ جا کے آپ نے ایل ایم ایس جو اپنا اسٹوڈنٹ پرسنل اکاؤنٹ ہے سی ایم ایس کا وہ اوپن کرنا ہے۔ وہ اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ آئے گا، ڈیش بورڈ کے پاس آپ کے پاس یہ آئیکن ہے سیٹنگ کا، اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کے پاس جدھر آپ مطلب کہ اپنے ایگزام وغیرہ کا رزلٹ چیک کرتے ہیں، اٹینڈنس چیک کرتے ہیں آپ لوگ، تو اسی مینیو بار میں ہوگا اسکالرشپ کا آئیکن ہوگا، یہ آپ کے پاس اسکالرشپ کا آئیکن ہے۔ اسکالرشپ کا آئیکن پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس اسکالرشپ کا پرفارما آ جائے گا۔ یہ آپ کے پاس پرفارما ہے، پرفارما میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے پرسنل انفارمیشن ہے، آپ کی پرسنل ذاتی انفارمیشن جو ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہے، آپ کون سے کس چیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ایچ ایس سی نیڈ بیس ہے کون سی ہے، یہ آپ کے پاس اسکالرشپ ہے، ان کے لیے آپ کس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس وہ آگے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس نیچے آ جائیں گے انکم ڈیٹیل، آپ نے اپنی انکم ڈیٹیل دینی ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس اسی طرح ایکسپینڈیچرز ہوں گے، آپ کے گھر کے اخراجات، یہ چیزیں۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں پرسنل انفارمیشن میں، پرسنل انفارمیشن میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے پرسنل انفارمیشن دینی ہے۔ پرسنل انفارمیشن دینے میں جو آپ کے مطلب کہ پرسنل انفارمیشن یہ آگے ادھر اسکالرشپ کا آگے پہلے انفارمیشن آپ نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اناؤنس کیے، جب آپ کلک کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا اسکالرشپ، ڈفرینٹ اسکالرشپ ہے یونیورسٹی میں، آپ نے کون سی کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ دینا ہے۔ پھر سبلنگ اور سسٹرز، مطلب کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں، آپ کے بغیر جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرے گا اس کے بغیر کتنے بہن بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے نمبر آف سبلنگ ہیونگ ایج 16 اینڈ 20 ایئر، 6 سال سے اوپر اور 20 سال سے کم آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے۔ ادر اسٹوڈنٹ مطلب کہ ہزارہ یونیورسٹی کے بغیر آپ کے بہن بھائی کدھر پڑھتے ہیں وہ انفارمیشن آپ نے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کہنا یہ انفارمیشن آ جائے گی انڈر گریجویٹ گریجویٹ پروگرامز، آپ کے پاس اس پرفارمنگ کو فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا یہ اسٹیٹس، یہ آپ کی اپنی پرسنل اسٹیٹس ہے، آپ ادھر کلک کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا، یہ آپ کے پاس آپ سنگل ہے، ڈائیورس وغیرہ یا میرج جو بھی ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے نیکسٹ پہ جانا ہے، نیکسٹ پہ جائیں گے ٹوٹل آپ کے پاس لاسٹ انسٹیٹیوٹ آپ نے آخری ایجوکیشن کہاں سے کی تھی، جیسے ہم بی ایس کے لیے اپلائی کریں گے ایف ایس سی کدھر سے کی تھی، جیسے کوئی کسی کالج کا نام لکھ لیں، اسی طرح آپ کے پاس یہ آ جائے گی۔ اور نیکسٹ آپ کے پاس پیرنٹس ڈسیبلٹی، پیرنٹس ڈسیبلٹی آپ تو لکھیں گے پر یہ ڈسیبلٹی آپ نے یہ یس ہے تو یس کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ آنا ہے، نیکسٹ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ کہیں شہری ہیں یا دیہاتی ہیں، آپ نے وہ اپنے بتانا ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ پہ آ جائیں۔ اور انکم ڈیٹیل، انکم ڈیٹیل آپ کے پاس ہوگی آپ کے فادر کی کیا انکم ہے، آپ نے اپنے فادر کی انکم بتانی ہے۔ فادر کے انکم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سورسز ہیں، جیسے لوگ آج کے پلازا، کسی کے پاس پلازے کی ہوگی یا زمین کی انکم آ رہی ہے، کوئی ہاؤس رینٹ آ رہا ہے، جو چیز بھی آ رہی ہے وہ چیز آپ نے دینی ہے۔ پھر اپنے پاس یہ بتانا ہے کہ بھئی فیملی ممبر کے حوالے سے بتانا ہے، مدر کا بتانا ہے، بھئی مدر انکم پر منتھ وہ کتنا کما رہی ہیں نہیں کما رہی، وہ چیز آپ نے بتانی ہے۔ پھر انکم فرام ادر سورسز، انکم فرام ادر سورسز میں کوئی اور انکم ہوگی، جیسے کہ اور کیا ایسٹ سے ہاؤس ہے، مارکیٹ وغیرہ ہے، جو چیز بھی ہے وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے۔ اگر ہاؤس ہے تو آپ نے ادھر ہاؤس لکھنا ہے، مارکیٹ ہے، جو چیز بھی ہے، کار ہے، جو چیز بھی ہے وہ ادھر لکھ کے پھر اس کے آپ نے ٹوٹل بتانا ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ اگر گاڑی آپ کے پاس ہے نا، کوئی بھی گاڑی ہے، گاڑی کی 40 لاکھ روپے قیمت ہے، اگر کوئی آپ کے پاس پلازا ہے، پلازا بھئی 1 کروڑ روپے کا جو چیز بھی وہ آپ نے ادھر بتانا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ چیزیں آپ نے ادھر بتانی ہے۔ پھر ایکسپینڈیچر ڈیٹیل، ایکسپینڈیچر ڈیٹیل میں آپ نے اپنے ہاؤس کا سٹیٹس بتانا ہے، ہاؤس سٹیٹس پہ کلک کریں گے آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا گھر رینٹ پہ ذاتی ہے
या सेल फोन है, जो भी है वो आपने बता देना है। फिर इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा मंथली इनकम। आपकी मंथली इनकम कितनी है ये चीज़ें आपने बता देनी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अपना अटैच करना है इसके साथ, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिखना है, ये जून का जो आपको बता रहे हैं इसका लिखना है। उसके बाद मंथली मेडिकल एक्सपेंडिचर, आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर आपको बताता चलूँ, मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपने लिखना है जैसे कोई बड़ी बीमारी कैंसर वगैरह की होगी, जैसे हार्ट पेशेंट हो गए उनकी लिखनी है, तो जैसे डायलिसिस वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, ये आपने भी चीज़ें लिखनी है। ये शुगर ब्लड प्रेशर तो ये चीज़ें नहीं लिखनी। अगर ये चीज़ें आप लिखेंगे इधर कि जो चीज़ भी, वो आपको एविडेंस के साथ मेडिकल में अटैच करना पड़ेगा उसके साथ। उसके बाद आपके पास मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर सिबलिंग, आपके पास महीने के बहन भाइयों के अखराजात कितने, सब के पूरे महीनों का, उसके बुक्स की, गाड़ी के, ये सारे अखराजात आपने इधर एडजस्ट करने हैं। उसके बाद ये किचन का आ गया, फूड का आ गया, ये चीज़ें आपने एडजस्ट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा भाई, आपने किसी स्पोर्ट्स लेवल पे खेलते हैं, कोई रीजन लेवल पे खेलते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, जो चीज़ भी आपने सेलेक्ट करनी है इसमें से सिलेक्ट कर लें। फिर आपने नेक्स्ट जाना है। फिर आपके पास जब ऑप्शन नंबर 4 पे आएगा भाई, आपके पास मेडल्स वगैरह इसमें वो होगा भाई, स्पोर्ट्स मेडल्स होते हैं अक्सर। स्पोर्ट्स मेडल में आप में भाई स्पोर्ट्स किस में खेलें, हॉकी, क्रिकेट, जो चीज़ है वो चीज़ आपने इधर लिख देना है। उसके बाद आपने इधर आना है। इधर आप आके आपने देखने, आपने रीजन में खोलें, नेशनल है या इंटरनेशनल, जो स्टूडेंट्स में जो भी आपने खेलें वो चीज़ आपने इधर लिख लेना है, क्योंकि वो चीज़ आप लिखेंगे और उसके साथ आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा वो भी आपने अटैच करना होगा। उसके बाद आपने आना है नेक्स्ट पे आपने पोजीशन ली है। पोजीशन आपने कौन सी ली है, ये आपके पास पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो पोजीशन ली है आपने वो लिख देना है। फिर नेक्स्ट आपने आना है। उसके बाद आपके वर्किंग पर्सन आ जाता है। वर्किंग पर्सन में वो होता है जो स्टूडेंट अप्लाई करेगा वो अपनी वर्किंग बताएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। आपने उधर लिखना है भाई कि क्या काम कर रहे हैं, उसमें जॉब टाइटल होगी। जॉब टाइटल में आपने लिखना है आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं, तो वो सैलरी स्लिप, वो चीज़ें आपने अटैच करनी है इसके साथ। उसके बाद सैलरी कितनी है आपकी, सैलरी आपने अपनी बतानी है, क्या सैलरी है वो आपने करना है। जो चीज़ आप इधर लिखेंगे वो आपने फिर साथ उसकी वो लगानी है, सैलरी स्लिप की पिक्चर लगानी है या अपॉइंटमेंट लेटर लगाना है। उसके बाद आपने जाना है ये एविडेंस फाइल अटैचमेंट पीडीएफ सिंपल अटैचमेंट होगी। इसमें सिंपल अटैचमेंट में आपके पास ये आ जाता है, इसमें आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो सीएनएससी एप्लीकेशन में आपको ये नजर आ रहा होगा। ये चीजें आपने सीएनएससी की पिक्चर को कन्वर्ट करने पीडीएफ में या सिंपल पिक्चर इसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास, नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 2 पे। उसके पास आ जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कहते हैं एफआरसी सर्टिफिकेट। एफआरसी सर्टिफिकेट में आपके कितने बहन भाई हैं ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं, और ये नादरा ऑफिस से आपको मिलेगा। तो ये नादरा ऑफिस से मिलेगा, एफआरसी सर्टिफिकेट अटैच करना वो भी मस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपको सिबलिंग स्टडी इन हजारा यूनिवर्सिटी। आपके बहन भाई कितने पढ़ते हैं हजारा यूनिवर्सिटी में, वो चीजें आपने इधर उसकी डेटा देना है। फिर नेक्स्ट में आ जाता है सिबलिंग स्टडिंग इन हायर एजुकेशन प्रोग्राम। हायर एजुकेशन में हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम आ जाते हैं, फिर पीएचडी। आपके बहन भाई पीएचडी प्रोग्राम में कितने पढ़ते हैं, आपने उनका डेटा इधर देना है, अटैच करना है। तो उसके साथ नेक्स्ट जाते हैं हम। फिर आ जाता है डेथ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, वो आप पे डिपेंड करते हैं आपने डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है। डेथ सर्टिफिकेट में जैसे कि आपने अगर पीछे वाले साहब की डेथ सर्टिफिकेट बताया तो फिर डेथ सर्टिफिकेट आपने लगाना है, नहीं है तो फिर नहीं लगाना। फिर आ जाता है पेरेंट्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये भी आप पे डिपेंड करता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आया आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में पेरेंट्स को डाला है, यस लिखा है तो आपने फिर सर्टिफिकेट लगाना, नहीं है तो ना लगाएं। फिर सेपरेशन सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, इसमें आपके पेरेंट्स के सेपरेशन आ जाते हैं, मतलब कि डाइवोर्स वगैरह हुई है या नहीं हुई है वो चीजें आपके पास आ जाएंगी। अगर डाइवोर्स है तो फिर उसका सर्टिफिकेट लगाना है, ये भी आप पे डिपेंड करता है, नहीं है तो फिर नहीं लगाना।
इनकम सर्टिफिकेट, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपको बताए हुए जो इनकम है वो आपने जो एंट्री में आपने इनकम दी हुई है वही इनकम सर्टिफिकेट आपने इधर लिखने हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाता है हाउस रेंट एग्रीमेंट। हाउस रेंट एग्रीमेंट जो है आपके, जैसे आप लोग कह रहे थे हम किराए पे रहते हैं, आपने किराया डाला हुआ है, उसका हाउस रेंट, अगर आपका अपना जाती घर है तो ठीक है वो, और जो भी आपने पीछे अपने फॉर्म में फिल किए वही चीज आपने इधर अटैच करनी है। नेक्स्ट पे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास जो बिजली का बिल है, तो आपने अगर पीछे बिजली का बिल लिखा हुआ है कि इतना हमारा बिजली का बिल है, ये चीजें जैसे जून वाला उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी, इसी तरह आपने फिर इधर लिखना है हमारा बिजली बिल का जो वो पिक्चर होगी, वो पिक्चर आपने इसके साथ अटैच करनी है। जैसे साइड एरिया के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा बिजली का बिल नहीं है, वो नो लिख देते हैं, तो उनके लिए इधर फिर अटैचमेंट की जरूरत नहीं है बिजली बिल की। फिर मेडिकल बिल एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट और बिल में मैंने पीछे भी बताया कि मेडिकल में ये होता है अक्सर जो आपने अल्लाह ना करे कैंसर, ब्लड कैंसर, जो डायलिसिस, जो बड़ी बीमारी है, आपने वो चीज इसमें लिखनी है, वो चीज, और मेडिकल रिपोर्ट आपने इसके साथ अटैच करनी है, और मेडिकल रिपोर्ट आपने इसके साथ अटैच करनी है, और इंटरव्यू में वो मेडिकल ओरिजिनल जो चीज आप अटैच करेंगे वही चीज आप इंटरव्यू में लेके आएंगे। फिर सिविल स्टडी इन स्कूल अप टू इंटरमीडिएट लेवल, ये आपके पास आ जाएगा। आपके बहन भाई जो इंटरमीडिएट के पढ़ते हैं, जो चीज भी है आपने जो डाटा पीछे दिया होगा वही आपने इधर अटैच कर देना है। फिर प्रूफ ऑफ मंथली फूड एंड किचन एक्सपेंडिचर, वो जो मंथली आपके महीने के घर के अखराजात कितने हैं, किचन के, ये सब चीजें आपने उधर अटैच, जो चीज पीछे लिखेंगे और इधर अटैच कर दें आप इसके साथ। सर्टिफिकेट ऑफ, ये जो आपको पीछे ही बताया था कि भाई जो आपके पास गोल्ड मेडल वगैरह स्पोर्ट्स में आपने हिस्सा लिया हुआ है, तो वो चीजें इधर पूछी हुई हैं। स्पोर्ट में आपने अगर रीजन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे, अक्सर ये होता है कि कॉलेज और स्कूल्स में बच्चे खेलते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, वो जो सर्टिफिकेट आपने पीछे बताएंगे वही सर्टिफिकेट आपने इधर अटैच करना है। फिर प्रूफ ऑफ सर्विस वर्क, आपने सर्विस वर्क का प्रूफ देना है, भाई आप जो पीछे मैंने बताया था स्टूडेंट क्या वर्क कर रहे हैं, क्या हिसाब है, अगर स्टूडेंट वर्किंग पर्सन है तो आपने वो चीजें इधर अटैच करनी है। तो उसके बाद आपके ये हो गए, तो उसके बाद वो नेक्स्ट डैशबोर्ड पे आ गया। तो दूसरी चीज ये थी कि ये चीज आपने करनी है, जो चीज आपने इधर एंट्री देनी है वो एंट्री, हर एंट्री के आपके पास मार्क्स होंगे, तो बड़े एहतियात से और ख्याल से ये परफॉर्म आपने फिल करना है। और दूसरी चेंजिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह इसमें बाद में कोई नहीं होगी। एक दफा आपने अगर कोई परफॉर्मा नीचे जाए, इधर आपको मैं बता देता हूँ सबसे लास्ट में, इधर आप जब अटैच करेंगे उसके बाद आपने ये आपके पास आ जाता है, तो सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन जब आप कर लेंगे, आपने उसके बाद इधर सबमिट होगी आपकी एप्लीकेशन, उसके बाद आपकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। अब आपको मैं ऊपर बता देता हूँ, सबसे टॉप में एंट्री आ जाती है आपके पास, ये एंट्रीज है आपके पास। ये एंट्रीज वो एंट्रीज हैं जो डेटा आपने दिए हुए वही डेटा इधर आ जाएगा। जो डेटा आपने जो फॉर्म में दिए हुए वो डेटा, जैसे आपने स्कॉलरशिप मैंने पहले बताया, आपने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपने कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। दूसरा आपके पास मंथली इनकम आपने जो इधर आपने लिखी होगी वो, ये सब आपके पास एंट्रीज हैं। अब मैंने तो अप्लाई नहीं किया, तो अगर मैं अप्लाई करता तो आपके पास इधर आ जाती है एंट्रीज। आपके पास जब इधर एंट्रीज आ गई, ये सब एंट्रीज, तो आप समझ जाए आपके अप्लाई हो गए। दूसरी बात ये, आपका मेडिकल का मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि मेडिकल बिल जो अल्लाह ना करे बड़ी बीमारी हो